So everything that you need to know before you start arithmetic, and it's very important to understand things from some core basics. Primarily because once we start getting into concepts, we also start realizing that it is not converting into problem solving. And one key area which effectively remains uncharted, undiscovered for a lot of people is foundation. So the way I look at the problem solving process inside quants is starting with foundations, wherein you effectively do some of the core basics that we are going to look at today, and then moving into something called your basic concepts. That effectively moves into the application layer, wherein you talk about these concepts sliced and diced, and the ability to see those concepts from multiple directions. And then effectively comes the problem solving. Okay, if any of these steps, if basic concepts goes for a toss, or if foundations go for a toss, or application layer goes for a toss, it directly impacts problem solving, right? While the level 1 problems are impacted by foundations and basic concepts, the level 2 problems are impacted by all three, right? And therefore, it's very important to spend some time over here. Okay. If you identify as somebody who's weak with math, if you are somebody who is, really afraid of maths, I think this is the right starting point for all of you. Okay. How many of you would, want to mention that they are scared of maths? They do not get a good feeling when they are doing maths. Anybody like that? For people specifically who are facing difficulties with quants, I think foundation layer is something which is very very important. So that is what we are going to take up. It's going to be not very heavy on the head, so we're going to have a very relaxed session today and tomorrow, wherein we're going to be taking care of some of the core foundations which are important. Okay, there might be a few things that you know already, but the core idea is to cover the foundations well, and for you to start developing some level of speed also. Okay, so I'm hoping that it helps you set some context. Let's get started. सबसे पहले one important element to understand is the fraction to percentage conversions, also known as the fraction table. Okay. Fraction table is something which is very, very important as far as basic calculations are concerned. And your ability to generate speed depends on the fraction table. Okay. So what comes within the fraction table is that there are a few fractions that we have to make sure is there in our kitty, and we are not effectively calculating this over and over again. We just know these numbers and we are able to apply them as and when we want inside the problems, so that we don't have to actually do absolute basic calculations also using a calculator. So let's look at these fractions to begin with. Okay, so let's look at these fractions. Okay, so let's quickly look at these fractions. Okay, so let us start. What's the value? Can somebody tell me, some people who have, studied fractions and would want to tell me, how do you effectively look at these fractions in decimal and percentages? Okay, so that's the first step. So if I convert 1 by 2 into decimal, what do I get? I get a point 0.5, right? And into percentage will be 50%. Very, very good. Very, very nice. 1 by 3 will be obviously 0.33, and that will be 33.33%. If I talk about 1 by 4, that will be 0.25, and that is 25%. Okay. 1 by 5 will be zero point 0.2, and that is 20%. 1 by 6 is 0.167, and that is 16.7%. 1 by 7 will be 0.143, and that is 14.3%. 1 by 8 will be 0.125 and 12.5%. 1 by 9 is obviously 0.111, and that is 11.1%. 1 by 11 is 0.091, which is 9.1%. 1 by 12 is 0.0833, and that is 8.33%. If I talk about 1 by 13, that's 0.077, that is 7.7%. If I talk about 1 by 14, that is 0.0714, that is 7.14%.
Okay, Shubh, one step ahead, very good. 1 by 15 is 0.066 and that is 6.67%. If I talk about 1 by 16, that's 0.0625 and that is 6.25%. 1 by 17 is 0.0588 and that is 5.88%. A 1 by 18 is 0.055 and that is 5.55%. And a 1 by 19 is 0.0526 or 0.053. You can take it as 5.3%. Okay. So first step, what are we expected from a CAT standpoint, from an OMED standpoint? Okay. What do we have? What are we expected? Okay. Can I survive without this? The answer is yes, I can. But then, even the simplest of calculations, even the simplest of questions are going to eat up a lot of time, leaving us very little time for difficult problems. And that is where the attempts are going to shrink, right? And therefore, so we plan to start, our sessions on Monday, but we thought that it might be useful to effectively do some basics over Saturday and Sunday so that everybody is up to some pace and some basics are absolutely clear. Okay. So what's the first step? The first step towards foundation is to calculate this, note it down, and then effectively have it by heart so that whenever any of these fractions come in, we are able to calculate it very, very quickly. Okay. Is that first step clear to everybody? एक बार सब लोग फटाफट confirm करो. Once you have, the fraction table here, then your calculation is definitely ahead of many other people who are doing these fractions. Okay. And then the second step is to basically play with these fractions. So what do I mean by playing with the fraction? See, if I have to do a 7 by 19, obviously I have an advantage because I know 5.3% is 1 by 19. 7 into 5 is 35. 7 into 0.3 is 2.1. So this will be 37.1%. ये कितने लोगों को समझ में आया? For calculations like this, if you are using a calculator, then you are using calculator, well, too much. And that is something which is definitely going to slow you down, right? If there are difficult problems, understandable. If there are difficult calculations, understandable. But for basic calculations, it has to be here. And trust me, it's also important for the future, getting inside the B school and beyond. If you're not good with some basic numbers and calculations, it's going to be very, very difficult because you are expected to have these numbers on the tip of your fingers once you are, working inside a corporate at a senior level. Okay, because you have to do a lot of calculations without actually having pen paper. You have revenue growth projections, you have sales projections, you have profit projections, you have EBITDA projections, and that is something which requires some level of number crunching. So this is something which is not just for CAT, but this is for life. If you are really wanting to have a good, command over numbers and basics of numbers. Okay, 7 by 19. Similarly, can somebody tell me what is 8 by 13 in percentage? Now, what is 1 by 13? I know 1 by 13 is 7.7. So 8 by 13 will be 8 into 7.7. 8 into 7 is 56. 8 into 0.7 is 5.6. So therefore, I'm going to get a 61.6. Very, very good, Nidhi. Brilliant. Shubh Manglik, Vedant, बहुत बहुत बढ़िया. Very, very good. So if you are starting and if you are somebody who's not very good with maths, start being good here. Okay. Start being good here. Start doing these things better than everybody else. Okay. Is this part clear to everybody or not? This is effectively doing the fraction table and then playing with the fraction table. So what is playing with the fraction table? You're going to be taking some multiple of these fractions, right? For example, if I have to take, let's say, 8 by 17. So 1 by 17 is approximately 5.9. So if I have to take 8 by 17, 8 into 5 is 40. 8 into 0.9 is 7.2. So 8 by 17 is 47.2. No pen involved, no paper involved. Is this clear to everybody? Can we all quickly confirm? Okay. So obviously our objective over the next, 2 days, 5 days, 7 days should be to get some level of control over these basic fractions. How many of you are with me so far? Can you all quickly confirm? Are you guys with me? Everybody, एक बार सब लोग फटाफट कंफर्म करो, फिर अपन चलते हैं आगे. ठीक है? Can we all confirm? If anybody has any confusions, please speak up. Okay? Anything
anything can go wrong, but not this. Okay. Because if this is not set up, then you will always feel inferior with respect to others. People who are able to, sail swiftly, people who are able to move faster within the paper are generally people who have these elements absolutely clear. Okay. So that's the first section that we have to be very, very careful of. Okay. Are we all good? Can we all quickly confirm? Anybody having any doubts, please feel free, speak up, participate. It's absolutely okay to have very simple doubts also. All right. Now, let me move across to the next element, which is called multipliers. You use multipliers all the time. Okay. Anybody here from a commerce background or a finance background? You can just mention commerce or finance in the chat. Anybody here from a commerce or finance background? कॉमर्स फिनेंस. तो जो कॉमर्स और फाइनेंस वाले लोग हैं, कैन यू कंफर्म कि फाइनेंस के अंदर, कॉमर्स के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लोस और समथिंग कॉल्ड एनपीवी कैलकुलेशन? कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में? डिस्काउंटेड कैश फ्लोज या एनपीवी, उसके अंदर भी मल्टीप्लायर ही लगता है. तो मल्टीप्लायर इज नॉट समथिंग दैट यू आर गोइंग टू बी यूजिंग ओनली विद इन कैट. Trust me, what you are doing right now is going to stretch beyond CAT, inside your B school and beyond. Okay. So when you are doing this, doing these basics, do it absolutely well. Do it very, very well. Okay. So that you are convinced that you are definitely ahead of the rest if these basic calculations are concerned. Okay. And this is also something which gives you a very different level of advantage when you are solving or when you are calculating. Okay. So as soon as I am very clear with the concept, I should be able to solve problems like this. Okay. Is this clear to everybody? Perfect. So what do I mean by multipliers? Let's do some level of calculations within multipliers also. Okay. So इस part को, let's divide this into two parts. One is moving from percentages to multipliers. And that again, is divided into two parts. There is one part which is increase, and there is second part which is decrease. And moving from multipliers to percentages. What it will also do is you will have, a very different level of, calculation speed once you are solving the problems. Okay. So there is a small investment, but this is something which is very, very useful when you start solving problems. Okay. Have a look at this. Okay. If I am to increase a number by X%, ओके, अगर मैं किसी नंबर को X% से इंक्रीज करूंगा, तो आई एम डेफिनेटली मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाई 1 + X/100. ठीक है. If I am to increase a number by X%, I'm going to multiply this by 1 + X/100. Okay. Example, if I am to increase a number by 30%, that is same as multiplying that number by 1 + 30/100, that is 1.3. Okay. Okay. If I am, let's say, increasing a number by 67%, then it effectively means increasing a number by or multiplying the number by 1.67. Okay. Simple as that. Is this clear to everybody? Give me a sense, yes or no in the chat. Please feel free. If you are, let's say, 80% sure, you should say a no. If you are, 90% sure, you should say a no. If you are 95% sure, you should say a no. Okay. You should say a yes if you are 99% or 100% sure. Okay. Right? Because once we move inside arithmetic, we are going to be utilizing this. And therefore, we are spending a couple of days between Saturday and Sunday to ensure that these absolute basics that we're going to be using inside the sessions are absolutely clear at each other's ends. Okay. Now, similarly, if I am to reduce a number, if let's say I am to reduce a number by X%, then I am to multiply that number by 1 - X/100. Okay. Imagine I am reducing something by 33%. What should be my multiplier? That should be 1 - 33/100, which is 0.67. So 0.67 is what you should multiply a number by when you have a 33% reduction. Okay. Example can be, let's say you have a product at 200 rupees, you are giving a 33% discount.
Then all you have to do to find out the selling price is multiply this with 0.67 and get a 134. Is this clear to everybody? So if you have a product marked at 200 rupees, you are giving a 33% discount, meaning you have to multiply this with 0.67 and get a 134 straight away without actually much of a hassle. Okay. Is this part clear to everybody? So if you have to increase a number, let's say you have a product priced at 216 rupees. Okay. If you have to, let's say, or maybe, let me make it a little simpler. If I have a product at 204 rupees, I am, let's say, increasing the price, or basically this is the cost price. Okay. I am aiming at 2% profit. If I'm aiming at 2% profit, what should be my multiplier? I have a product at 204 rupees. Okay. I am aiming just a 2% profit. If I'm aiming a 2% profit, then I'm basically increasing the cost price by 2%, multiplying it with 1.02. Now, how do I do it? I have a 204 and I have a 102. So I can write this as 2 into 102 into 102. Okay. I'm going to talk a little bit about squares also. For now, I'm going to just write it. So 10404. That's the number. And then you multiply it, you get 20808. And then you have two places. So you get 208.08. That is how fast you should be able to calculate. Obviously, it will not happen in one day, but if you keep practicing, spend 10 to 15 minutes every day over the next 30 days and practice these basic elements. Okay. Is this clear? Am I making sense to everybody? Can we all quickly confirm? So spend 15 minutes and you see the magic of calculation in 1 month. 15 minutes every day is what it takes. Spend some time doing multipliers, spend some time doing fractions. Okay. And I'm going to move to some of the other elements also. Okay. Now, let me talk a little bit about, the moving the other way around. So I'm moving from multipliers to percentages. Okay. Let me give you a simple example. Okay. Let us say that a product which was at 200 rupees cost price was sold at 218 rupees. Okay. I want to find out the profit percentage. Okay. So what is the multiplier here? What is the number being multiplied? The number being multiplied is a 1.09, and a 1.09 multiplier corresponds to an increase of 9%. So whenever you are moving from a multiplier to percentage, all you have to do is, if it's more than 1, just subtract 1, gives you 0.09, and then multiply this with 100, get a 9%. That is the increase that you are getting in this case. Is this clear to everybody? So when a number moves from, let's say A to B, okay, फिर से देखो, if I'm, let's say, increasing any number, okay, let me show you once more. सब लोग ध्यान से देखो, आसानी से हो जाएगा. ध्यान से देखो. Let me give you another example. Okay. If I am moving from 300 to 312, okay, what is the multiplication that I am looking at? What is the multiplier? The multiplier is basically, you have 312 by 300, you will get a 1.04. Is this clear to everybody? So 312 by 300 is 1.04. Now I am wanting to see what is the percentage increase. Okay. So how do you move from multiplier to percentage? All you have to do is subtract 1, get a 0.04, multiply with 100, get a 4%. That is the increase that you are looking at. Is this clear to everybody? This way, you can convert any multiplier into a percentage. Okay. So you know how to convert percentage into multiplier and a multiplier into percentage. Let me give you another example. Okay. What happens in case there is a decrease? But uske pehle, let me take another case of increase. If you are, let's say, moving from 120 to 144. Yes, Vinay, go ahead. Go ahead, Vinay. So, I mean, I have one doubt. Mhm. How did you find out that 1.104 value from 300 to 312? I mean, how did the multiplier came? How did you Okay. calculate the multiplier? Very good. So I did 312 by 300. Okay. And then I said that this is 3.12. And then I said that this is 1.04. Okay, Vinay. Got it.
Got it. Thanks. Perfect. So, thanks for that question, Vinay. I'm hoping that this question also clarifies it for other people also. And I'd really request everybody, please do not think that it's a silly question. It's absolutely okay because that might help others also. Yes, Vinay, go ahead. You have a question, Vinay? No, no. I just lowering my hand. No problem. It's okay. All right. So I have a 1.04. Let me give you another example. I'm moving from 120 to 144. What is the percentage increase that I'm looking at? What is the percentage increase that I'm looking at? This is a calculation, and there can be several calculations like this. Have a look at this. So I'm saying I'm basically getting a multiplier here. That's 144 by 120, right? So if I divide it 12 times 10 times. If I divide it by 10, 1 times, 1.2 times. So 1.2 is the multiplier. Subtract 1, get a point 0.2. Multiply with 100, get a 20%. That is the percentage that you are calculating in this case. So calculating percentage increase or percentage decrease is very simple. You don't have to do any formula. Just use multipliers and you are done. Let me give you another example. Okay, I have, let's say that I am having a 369. Yes, Vinay, go ahead. Go ahead, Vinay. Uh, I mean, why do we have to calculate the multiplier? I mean, we can directly use the percentage formula, right? I mean, we can take a numerator upon denominator into 100. Instead of finding out multiplier and then multiplying it by 100, we can directly calculate the percentage, right? I mean, All if we right. have given the two. Let me, Vinay, tell you a situation. Okay. If let's say I am basically having a product at 2000 rupees. Okay. I'm giving you a discount of 20%. And then I'm giving you a discount of 10%. Okay. All right. So can we all try to figure out what's the resultant value here? So do I calculate 20% of this number, subtract, then calculate 10% of the number, subtract, and then get the answer? Because that is obviously a longer route. So all I have to do is what these crazy people in the chat are doing, a zero point 0.8 and a zero point 0.9, giving me a 0.72. Straight away multiply, get a 1440. Vinay, clear? So if you are using Got it. multiplier, for simpler problems, it will seem that the traditional approach is better. But the moment I, put in more number of variables, you will effectively start feeling the difference, like we are doing it here. Karan, फिर से देखो. If I'm reducing a number, let's say for example, I have a product at 2000 rupees. I am giving a discount of 20%. I am giving another discount of 10% on that. What is the meaning of discount? Discount meaning increase or decrease? डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? सब लोग फटाफट कंफर्म करो, डिक्रीज होता है ना? तो अगर किसी नंबर को 20% से डिक्रीज किया तो इसका मतलब कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? 0.8 से, राइट? है ना? ऑल राइट। शहना, अलमीरा के पीछे मत देखना, रात हो गई है, मैंने बता दिया। ठीक है, मेरा काम था, बता दिया मैंने, मत देखना। ठीक है, ओके, कम बैक। 10% here, and if you have a reduction by 10%, then what is the number that you are looking at? ये देखो, अभी हमने मल्टीप्लायर यहाँ पे कैलकुलेट किया, x% का रिडक्शन, 1 minus 10 upon 100, that's a 0.9. Now all you have to do is multiply this to get the final number. A 0.8 into 0.9 is 0.72. 2 into 72 is 144. So basically you get a 1440. Karandeep, is this now clear to you? Vinay, is this now clear to you? So what is, so basically when the problem is very simple, okay, then the traditional approach and the multiplier approaches will be similar. When we convolute it, then it becomes, faster than any other method when you are doing it. Meghna is saying 0.8 कैसे है? देखो मेघना, 20% का रिडक्शन है, मतलब 1 minus 20 upon 100 है.
तो क्या होगा, 0.8 हो जाएगा. सो व्हेन यू आर डूइंग 0.8 इंटू 0.9, इट गिव्स यू अ 0.7. और इस तरीके से सीरीज में मल्टीपल, अगर फॉर एग्जांपल रिडक्शंस होंगे, तो मैं हर बार परसेंटेज डिक्रीज नहीं निकाल सकता हूँ. I will use multipliers and effectively get to the final answer faster. Okay. Is this clear to everybody? Can you all give me a quick sense? सब लोग फटाफट कंफर्म करो. Is this absolutely clear to everybody? Brilliant. Very, very nice. Okay. Now let's quickly move forward into a few other important elements. Okay. So we talked a little bit about multipliers to percentage. Let me give you another example. If let us say that a number has reduced from 180 to, let's say, a 135. Okay. I've moved from 180 to 135. What's the number that I'm looking at here? What's the number, the multiplier? 135 and 180. 15 9 times, 15 12 times. 3 3 times, 3 4 times. 3 by 4 is 0.75. Okay. 0.75. Just subtract 100, get a 0.25, negative into 100, get a minus 25%. So a reduction of 25%. This is how you move from multipliers to percentage, while the first section was about moving from percentages to multipliers. Anybody having any questions, please feel free. Anyone having any questions, doubts, queries, ideas, please feel free. Okay, multipliers is important because it effectively reduces the calculation time in a lot of topics, be it interest, installments, be it profit and loss, time, speed, distance. A lot of problems you will see that the multiplier is effectively crushing down the time taken by 25 to 50% in a lot of problems. Okay, so this is something which we have to do and does not take you more than 2 days or 3 days to adapt and do it well. Okay. Can we have a situation where multiple multipliers are being to converted to percentage? Yes, Karan, I'll show you that. But before that, can everybody confirm that this part is clear? Okay. Moving from percentage to multiplier and moving from multiplier to percentage. Can we have everybody mention yes if they are clear? Okay. Can we have everyone? Okay. What about everybody else? What about Vinay? What about Hello. Yes, Vinay, go ahead. Uh, Go Sorry, ahead. I mean, can you, how did this 0.7, This one? Okay. how did you reach this 0.75? Because T minus 35 is 45, and then Really. So this is 15 into 9. This is 15 into 12. Okay. I'll also why, request everybody. Okay. why Everybody. did we, why did we do 15 into 9 and 15 into 12? What was the reason behind this? I'm just, simplifying them. And then basically I'm effectively reducing it to 3. I'm reducing it to 4. And then I'm doing 3 by 4, which is 0.75. Okay. Is there any other way to do this? Sorry. Is there any other way to go Yeah, about yeah, absolutely. You this? take it with Because 5. I'm, if I, 27, 5, 36, okay. 3, 9, 3, 12, Oh, this is 3, 35. right? Sorry, I got So got it, got it. what everybody has to do, okay? Okay, I'll need a quick promise from everybody. Okay. Can we all make sure that they know tables till 20 at least by end of tomorrow? Can we all do this? Can we all quickly confirm? I need a promise from everyone. Okay. Okay. If I am basically, if I have the possibility of dividing these numbers by 15, if I'm dividing these numbers by 5, I'm increasing the number of steps. Simple as that. अगर मैं इस नंबर को 15 से डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन मैं इस नंबर को 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरा स्टेप्स बढ़ रहा है. और जितना स्टेप बढ़ेगा उतना टाइम बढ़ेगा. सिंपल. ठीक है. तो टेबल्स 20 तक सबको करना है. इज दिस क्लियर टू यू? यस, मृगना, गो अहेड. सर, मल्टीप्लायर्स टू परसेंटेज तो क्लियर हो गया, बट परसेंटेज टू मल्टीप्लायर अब एक बार क्लियर कर दोगे? हाँ, डाउट पूछो. कोई मतलब जो परसेंटेज. लेट्स से 40% है, मतलब तो अब 40% अगर इस परसेंटेज टू मल्टीप्लाई. 40% का इंक्रीज है कि हाँ, डिक्रीज है? चलो दोनों ले लेते हैं. अगर 40% का इंक्रीज. इंक्रीज है, तो 1 प्लस 40 अपॉन 100 मतलब 1.4 होगा.
और अगर राइट। 40% का रिडक्शन है तो 1 - 40/100 मतलब 0.6 होगा। हम्म। ठीक है। तो अगर किसी नंबर को 40% से इंक्रीज करना है तो सीधा 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि हम्म। अगर मान लो 140 को 40% से इंक्रीज करना है, मान ले तेरा कॉस्ट प्राइस है 140 और उस हम्म। प्रोडक्ट के ऊपर तुम 40% प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऑल यू हैव टू हम्म। डू इज मल्टीप्लाई इट विथ 1.4 एंड यू गेट अ 196। मेरे को जैसे कि आपके 1+40/100 को हम ट्रेडिशनल तरीके से भी कर सकते हैं। 1.4 मतलब कौन सी कैसे तरीके से एकदम कर डायरेक्ट सकते हैं? जैसे ट्रेडिशनल लाइक एलसीएम लेकर कि 1+40/100 का। 1 + 40/100 को हम लिखेंगे 100 + 40/100, फिर इसको राइट। लिख देंगे 140/100, फिर इसको लिख देंगे 1.4। राइट। राइट। ठीक है। बेसिकली देखो मृगना, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 40/100 को तुम सीधा ही 0.4 लिख सकते हो ना, हम्म। और हाँ, 1 + 0.4 कर दोगे तो सीधा 1.4 आ जाएगा। हम्म। राइट। ठीक है। ओके। और यहाँ पे 40/100 को सीधा 0.4 लिखोगे तो 1 - 0.4 करोगे तो 0.6 आ जाएगा। यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया? ठीक है। हम्म। देन आई एम गोइंग टू टेक अप करंस क्वेश्चन जहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स हो और हमको सॉल्व करना है। ठीक है। तो करणदीप का जो पॉइंट था उसको अभी उठाएंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। बट यहाँ तक मेरे को सब लोग कंफर्म करो कि इधर क्लियर है। एक और चीज तुम्हें करनी होगी। ठीक है। वन मोर थिंग विच यू नीड टू डू एंड दैट इज कि यू विल नीड टू प्रैक्टिस इट थोड़ा सा। ठीक है। सो ओवर द वीकेंड थोड़ा सा टाइम लगा के इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है। अभी ऑल गुड? ओके। राइट, चलो आगे चलते हैं। लेट्स लुक एट सक्सेसिव परसेंटेजेस। ठीक है। अब तुम्हें मल्टीप्लायर का मजा दिखना शुरू होगा। देखो, सक्सेसिव परसेंटेज, हैव अ लुक एट दिस। सक्सेसिव परसेंटेज के साथ साथ में आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू some basic sense of approximation also. Okay. Okay. Which brand do you use for denims? डेनिम्स के लिए तुम कौन से ब्रांड यूज करते हो? थोड़े अच्छे वाले ब्रांड्स बताओ। ठीक है, कौन से ब्रांड्स यूज कर रहे हो? ओके। लीवाइस। ओके। सब लोग लिवाइस लिवाइस ही बोलते रहेंगे, कुछ अलग बताओ यार। ठीक है। लिवाइस के अलावा। ठीक है। ओके। लुई फिलिप, फ्लाइंग मशीन, और क्या है? और क्या? मैं वही नाम लिखूंगा जो मैं जानता हूँ। ठीक है। ओके, वुडलैंड। ऑल राइट। जूडियो। जूडियो तो स्टोर है, ब्रांड बताओ यार। ओके। पेपे जीन्स ले लेते हैं। पेपे जीन्स वैसे मर चुका है। ठीक है ना? पेपे जीन्स ले लेते हैं, चलो। ठीक है। मान लो ये चार ब्रांड्स हैं। ओके। ये चार ब्रांड्स के अंदर जो तुम्हारा मार्क प्राइस है, जो प्रोडक्ट का मार्क प्राइस है, वो लेट्स से 2000 है। ठीक है, ले लिया 2000। ओके। लिवाइस पे मुझे 10% का प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है और 10% मुझे बिलिंग पे डिस्काउंट है। लुई फिलिप पे मुझे 5% का प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है और 15% का बिलिंग पे डिस्काउंट है। फ्लाइंग मशीन पे मुझे 15% का प्रोडक्ट डिस्काउंट है और 5% बिलिंग डिस्काउंट है। पेपे जीन्स में मुझे 20% प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है और मुझे बिलिंग पे कोई डिस्काउंट नहीं है। सिंपल क्वेश्चन ये है कि एज अ प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर विच ऑप्शन शुड आई पिक? एज अ प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर मुझे कौन सा वाला ऑप्शन लेना चाहिए? ठीक है, अगर मैं प्राइस कॉन्शियस कस्टमर हूं, कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? प्राइमा फेसी तुमको लग रहा होगा कि हर जगह 20% का डिस्काउंट है। ओके, अंकित ने बता भी दिया। बाकी सब लोग भी फटाफट कंफर्म करो कि इस वाले केस में अपने को किधर जाना पड़ेगा। अब ये हिसाब तुम्हें मल्टीप्लायर से बहुत इजीली समझ में आएगा। देखो, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। अगर मैं 10% का डिस्काउंट लेता हूं, 10% का रिडक्शन, तो क्या मल्टीप्लायर आएगा? एक बार सब लोग फटाफट कंफर्म करो चैट के अंदर। अगर मैं, है ना, तो 0.9 हो जाएगा। और फिर से 10% है तो क्या होगा? फिर से 0.9 होगा। तो 0.9 × 0.9 क्या मल्टीप्लायर बनेगा? 0.81। अब 0.81 को वापस परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 19% आएगा, हाँ कि ना?
तो यहाँ पे नेट डिस्काउंट कितना हुआ? 19%। तो हमने यहाँ पे क्या किया? परसेंटेज टू मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर बैक टू परसेंटेज। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी, वन एंड ऑल? 10% का रिडक्शन मतलब 0.9 का मल्टीप्लायर, 10% का रिडक्शन मतलब 0.9 का मल्टीप्लायर, 0.9 इंटू 0.9 इज 0.81, एंड 0.81 इंटू परसेंटेज बैक अगेन, वन से सब्ट्रैक्ट किया, 19% का आपको डिस्काउंट मिल गया। ये सब लोगों को समझ में आया? एक बार सब लोग या तो यस लिख दो या नो लिखो, जो भी मर्जी लिखना है लिखो, लेकिन क्लियर करो भाई। ठीक है, क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनीबडी हैविंग एनी डिफिकल्टी, प्लीज फील फ्री, बट एकदम क्लियर होना चाहिए, पूरा पक्का वाला क्लियर, ऐसा नहीं कि ठीक है 19% क्लियर है। नहीं, पूरा 100% क्लियर होना चाहिए कि ये 19% क्यों हुआ और कैसे आया। और इसी, फॉर एग्जाम्पल, विथ अ कपल ऑफ डेज, विद अप्रोक्सीमेटली अ वीक, अगर हम थोड़ा थोड़ा सही से प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये कैलकुलेशन अपना सही बैठने लग जाएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? करण, इज दिस क्लियर? ऐश्वर्या, विनय, चेतन, दीपशिखा, दिया, दिव्या, कीर्ति, बाकी लोग फटाफट कंफर्म करो। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी एल्स? रितेश, मृगना, भाई बताओ यार तुम। ठीक है, फुटेज क्यों ले रहे हो, जल्दी से बता दो। ठीक है, अब देखो, 5% का अगर मेरे पास रिडक्शन है, ठीक है, 5% 15% कैलकुलेट को फास्ट कैसे करेंगे? मैं मल्टीप्लायर वैल्यूज हटाई, बिना पेन एंड पेपर करेंगे, मजा आएगा। देखो, 5% का मल्टीप्लायर क्या होगा? 0.95, और 15% का 0.85। अब देखा, कैलकुलेशन बड़ा मजेदार है। ठीक है, इसके लिए अपन को थोड़ा सा स्क्वायर्स पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी बात हम स्क्वायर्स की करेंगे। ठीक है, लेकिन अब गौर से देखो, सबको पता है कि अगर कोई नंबर एंडिंग इन 5 है तो तुम उसका स्क्वायर बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एक नंबर है 35, तो उसका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑल यू हैव टू डू इज, मान ले 35 है, तो 5 का स्क्वायर ले लो 25, और 3 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 4, तो मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? 1225। इसी तरीके से 45 करना है तो 25 ले लो, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2025 हो जाएगा। वैसे ही 55 का करना है तो क्या होगा? 25 ले लो, 5 इंटू 6 30 कर दो, तो 3025 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो 65 का करना है तो 4225 हो जाएगा, 75 का करना है तो 5625 हो जाएगा, 85 का करना है तो 7225 हो जाएगा। यहां तक कितने लोग मेरे साथ चल रहे हैं, फटाफट कंफर्म करो। ठीक है, ओके, आर वी ऑल गुड? कैन यू ऑल क्विकली कंफर्म? इज दिस गोइंग इन लाइन विथ एवरीबॉडी? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अपने को करना क्या है। 85 इंटू 95 करना है, डेसिमल बाद में एडजस्ट करेंगे, डेसिमल का चिंता मत लिया करो। कितने लोग यहाँ पे डेसिमल को देखते ही थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं कि डेसिमल आ गया, ओ माय गॉड? डेसिमल का चिंता मत करो, डेसिमल को लास्ट में एडजस्ट करो। ठीक है, डेसिमल देख के घबराना नहीं है। तुम पहले 85 इंटू 95 सॉल्व करो। 85 इंटू 95 को अपन लिख सकते हैं 85 इंटू 85 प्लस 85 इंटू 10, हाँ कि ना? 85 इंटू 95 को लिख सकते हैं 85 इंटू 85 प्लस 85 इंटू 10। ये कितने लोगों को समझ में आया? लिख के दिखा देता हूं, देखो। 85 इंटू 95 को लिख सकते हैं 85 इंटू 85 प्लस 10। इसको लिख सकते हैं 85 इंटू 85 प्लस 850। ठीक है जी, तो 85 इंटू 85 क्या होगा? 7225, और 850 क्या हो जाएगा? इसको ऐड कर देगा तो 8075 हो जाएगा। अब 8075 है, चार प्लेसेस आफ्टर डेसिमल होंगे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, तो 0.8075 हो जाएगा। अब इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 19.25%। सवाल पूछो। दिस इज हाउ फास्ट यू कैन डू इट। और ये एक्चुअल कैलकुलेशन, दिस इज समथिंग विच आई हैव डन टू शो यू। पर अगर तू प्रैक्टिस करेगा तो ये सब तुम बिना पेन पेपर के कर सकता है। नॉट वेरी डिफिकल्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, okay, so somebody who is, let's say afraid of maths, for them to move into, let's say, a zone wherein they're confident, I do not believe that it takes a lot of it does not take a lot of time, it might take a little bit of effort. Okay, यहाँ तक सब लोगों को समझ में है? ऐसे भी कर सकता है अंकित, बिल्कुल सही है। इस वाले को अगर मान ले तुमने लिख दिया 85 प्लस 5, या 80, लेट्स से 90 प्लस 5, और दूसरे वाले को लिख दिया 90 माइनस 5, 90 का स्क्वायर ले लिया 8100 माइनस 25, 8075।
ऐसे भी हो जाएगा। यहां तक सब लोगों को समझ में आया? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म कर दो। आर वी ऑल गुड? कैन यू ऑल क्विकली कंफर्म? ठीक है। अब देखो, यहां भी 19.25 आ गया। अब यहां पे भी तो सेम चीज है, 0.85 इंटू 0.95। तो 0.85 इंटू 0.95 यहां भी है। तो अगर यहाँ भी 0.85 इंटू 0.95 है, तो यहाँ भी सेम आएगा 19.25%। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे तुमको नेट नेट 20% का डिस्काउंट तो कहाँ मिल रहा है? मैक्सिमम डिस्काउंट पेपे जीन्स। तो पेपे जीन्स के साथ जाएंगे हम लोग। सब लोगों को समझ में आया कि आपका परसेंटेज टू मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर टू परसेंटेज कैसे करना है? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? है ना? अंकित बोल रहा है मैथ्स नहीं करवा रहा है, उसका एक्स्ट्रा 2 पॉइंट्स। आई एब्सोल्युटली अग्री। सब लोगों को समझ में आया? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो। आई जस्ट वेट 10-15 seconds फॉर यू टू प्रोसेस दिस एंड आस्क एनी क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड। चलो अब थोड़े क्वेश्चंस ले लिए जाएं। ओके, दिव्या गो अहेड। गो अहेड दिव्या। सर 85 into 95 में हमने 85 into 85 + 10 क्यों करा? 85 into 85 को 95 से मैं सीधा मेंटली मल्टीप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो मैं उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं ताकि वो मेरे लिए सॉल्व करना इजियर हो जाए। सो आई एम बेसिकली ब्रेकिंग इट डाउन इनटू 95 को मैं 85 + 10 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 85 into 85 करना बहुत आसान है। बिकॉज अगर 85 into 85 करना है तो क्या करना है? पहले तुम 25 ले लोगे, है ना? 85 into 85 बहुत इजी है। बेसिकली यहाँ पे 25 ले लो और 8 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 72 to 25 हो जाएगा। और 85 को 10 से मल्टीप्लाई करना भी इजी है, 850 हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करना आसान है, 8075 हो जाएगा। तो ये सब कुछ करने के लिए मुझे पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए इसको ब्रेक किया। अगर मुझे ब्रेक नहीं करना हो तो मुझे वैसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। सेकेंड वे ऑफ डूइंग इट इज कि आप यहाँ पे 95 को 90 + 5 ले लो दिमाग के अंदर, और 85 को 90 - 5 ले लो। अब गौर से देखो कि ये इफेक्टिवली तुम्हारा a + b × a - b फॉर्म में आ जाएगा। राइट दिव्या? अब तुम इसको a² हम्म - b² ले सकते हो। तो 90 का स्क्वायर 8100 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 8075 होता है। एक सिंपल चीज समझो, जो लोग बहुत अमेजिंग कैलकुलेट करते हैं वो भी सब कुछ कैलकुलेट नहीं करते।
You're getting my point? They are not calculating everything. They are just converting a problem into a form which is easily calculatable. समझ में आ रहा है? तो हर एक इंसान जो फास्ट सॉल्व करता है वो असल में ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से जो चीज तुम करते हो उसको बहुत फास्ट तरीके से कर रहा है, वो बेसिकली उसको अलग तरीके से कर रहा है. They are effectively breaking it down into components which are easier to solve. And that is how the mental math comes into picture. ठीक है? क्लियर है ना? या अब लोग बोल रहा है कि 85 एंड 92 होता तो फिर क्या होता? तो भी आसान होता. ठीक है, देखो बहुत सिंपल है. 85 इंटू 92 अगर करना है तो उसको भी 85 इंटू 85 प्लस 85 इंटू 7 किया जा सकता है. अब 85 इंटू 85 तो सेम रहेगा, करेक्ट है ना? एक्चुअली लोगों को भी पता चल चुका है. एंड फिर अगर तुम्हें 85 इंटू 7 करना है तो 7 इंटू 8 फिर 560 हो जाता है, इंटू 5 35 हो जाता है, तो 595 हो जाता है. अब बेसिकली इस वाले नंबर में अगर तुम 600 ऐड करके 5 घटा दोगे, 600 ऐड कर दोगे तो 7825 हो जाएगा, तो 7820 आ जाएगा, बन गया, खत्म. क्लियर है? तो जो लोग फास्टर कैलकुलेट कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो फॉर एग्जांपल वही सेम मेथड यूज कर रहे हैं जो हम यूज कर रहे हैं. दे आर यूजिंग अ डिफरेंट अप्रोच. दे आर बेसिकली ब्रेकिंग डाउन इनटू कंपोनेंट्स दैट आर इजियर टू सॉल्व. सबको समझ में आया? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो. एंड I think Deepshika also had a question. How come 15% is 85? दीपशिका, अंकित ने भी एक्सप्लेन किया. 15% का अगर तुम रिडक्शन लोगे तो दैट विल बी 1 - 15/100. और डिस्काउंट का तो मतलब ही होता है रिड्यूस करना. इज दिस क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? सो कैन यू ऑल क्विकली कंफर्म कि यहां तक सब कुछ क्लियर है कि नहीं? एंड आई नीड अ यस फ्रॉम एवरी वन. ओके, विनय, ऐश्वर्या, दीपशिखा, देवांश, करण, नमामि, रितेश, संजना, सैमसंग. सैमसंग कौन है भाई? ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं हमारा क्लास है, ऐसा नहीं है. ब्रांड ब्रांड आ जा रहा है. एप्पल एप्पल अटेंड कर रहा है सेशन हमारा. ठीक है, सैमसंग वैमसंग अटेंड कर रहा है. ठीक है, कोरिया तक भी हम लोग पहुंच गए हैं. ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? कैन वी ऑल क्विकली कंफर्म? सब लोग फटाफट कंफर्म करो. देख, तुम्हारा ना बेसिक से मैजिक तक का जर्नी तब होगा जब तुम थोड़ा सा एफर्ट मारेगा, जब तुम थोड़ा सा सॉल्व करेगा, तो तुम्हारा बेसिक टू मैजिक तक का जर्नी होगा. ठीक है, आगे चलें. लेट्स मूव फॉरवर्ड. थोड़ी सी बात हम बेसिक रेशियोज की करेंगे. ठीक है, थोड़ी सी बात हम बेसिक रेशियोज की करेंगे. ठीक है, अब जरा मैं सिंपल चीज बताऊंगा, तुम खाली मेरे को यस या नो बता देना. ठीक है, अगर तुम नो बोलोगे तो आई विल डिग डीपर, एल्स आई विल मूव. ठीक है, अगर मान लो इफ आई हैव टू नंबर्स, ठीक है, आई एम डिवाइडिंग देम इन द रेशियो 2:3. Okay. Then it's safe to say that the first number is 2/5 and the second number is 3/5 of the original number. Give me yes or no in the chat. ठीक है? Yes or no. Simple. मतलब I do not want to tell you what you already know. Simple as that. ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं. ठीक है, अगर नहीं है तो उसके डिटेल में जाएंगे, है तो कोई दिक्कत नहीं है. 2/5, 3/5. ठीक है जी, यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है, तो किसी नंबर को अगर मान ले मेरे पास, लेट्स से इफ आई हैव टू डिवाइड अ नंबर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4. किसी नंबर को 2:3:4 में डिवाइड करना है तो हम पहले वाले नंबर को 2/2 + 3 + 4 बाई 9 ऑफ द ओरिजिनल नंबर ले सकते हैं. अगर मान लो ओरिजिनल नंबर है तुम्हारा, लेट्स से इफ आई हैव अ नंबर 180 जिसको अपने को 2:3:4 में डिवाइड करना है, तो पहला नंबर हम 2/9 ऑफ 180 ले लेंगे, दूसरा 3/9 ऑफ 180 ले लेंगे, और 4/9 ऑफ 180 ले लेंगे. तो ये आपका 20 आ जाएगा तो 40 हो जाएगा, ये आपका 20 आ जाएगा तो 60 हो जाएगा, और ये वाला आपका 20 आ जाएगा तो ये 80 हो जाएगा. तो 40 60 80 में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, ये तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा. अच्छा, अब हम बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट की. ठीक है, थोड़ी सी बात हो गई. अच्छा, अब कुछ बेसिक रेशियोज की बात हम करते हैं. तो जहां पे रेशियो का एक डीआई के अंदर, डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर, कुछ रेशियो कंपैरिजन में अपने को फायदा हो जाए, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. ठीक है, अगर मान लो मेरे पास एक रेशियो है A/B जो कि 1 से कम है. ठीक है, उस सिचुएशन में अगर तुम कोई भी नंबर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करोगे तो वो नंबर का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पर, अगर लेट्स से यू हैव 3/4 which is less than 1. If I add 1 and 1 to the numerator, that becomes 4/5, which is greater. If I still add 1 and 1 to the numerator and denominator, it becomes 5/6, which is even greater.
If I add 1 and 1, I get 6 by 7, which is even greater. If I add 1 and 1, I get 7 by 8, which is even greater. Right? Is this clear to everybody? And you can very easily see the values. 3 by 4 is 0.75, 4 by 5 is 0.8, 5 by 6 is 0.833, 6 by 7 करना है तो 1 माइनस 1 बाई 7। अब 1 बाई 7 होता है तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 14% के आसपास, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.86 के आसपास। 7 बाई 8, 1 बाई 8 तुम्हारा 12.5 के आसपास होता है, तो ये 0.875 हो जाएगा। तो तुम खुद देखो, नंबर 0.8 से बढ़ के 0.833 हुआ, 0.833 से बढ़ के 0.86 हुआ, 0.86 से बढ़ के 0.87 हुआ, और 0.75 से बढ़ के 0.8 हो गया। ओके, बट इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट विल कीप अप्रोचिंग 1। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? It will move towards 1. If you keep doing this, the number will keep moving towards 1. It will never be equal to 1, but it will keep approaching 1. Is this clear to everybody? So any fraction which is less than 1, if you add something to the numerator and denominator, if the same number is being added, the fraction will increase in value. ठीक है? Clear है सब लोगों को? इफ वी ऐड डिफरेंट नंबर्स तो ये अप्लाई नहीं होगा, दिस विल नॉट अप्लाई। फिर तुमको मैन्युअली देखना पड़ेगा उसका वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा भी हम रेशियो कंपेयर करेंगे, सब लोग ध्यान से सुनो। ठीक है, तो ये आपका पहला एलिमेंट हो गया। अगर तेरे पास एक फ्रैक्शन है जो ग्रेटर देन 1 है, उस सिचुएशन में अगर तुम एक नंबर ऐड करोगे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? रेड्यूस हो जाएगा। मतलब अगर मान ले 5/4 है, उसमें 1 और 1 ऐड कर दिया तो 6/5 होगा, जो कि इससे कम होता है। फिर से 1 और 1 ऐड कर दिया तो ये 7/6 हो जाएगा, जो इससे भी कम होता है। फिर से अगर तुम ऐड कर दिया तो 8/7 हो जाएगा, जो इससे भी कम होता है। और अगर हम वैल्यूज देखें तो ये 1 पॉइंट तुम्हारा 1/4 मतलब 1.25 पे है, 6/5 1.2 पे है, 7/6 1.16 पे है, और 8/7 1.14 पे है। तो तुम खुद देखो कि वैल्यू रिड्यूस हो रहा है। तो अगर तेरे पास कोई फ्रैक्शन एक से बड़ा है, मोर देन 1, अगर सेम नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड करते चले जाओगे, तो नंबर क्या होता है, वो फ्रैक्शन क्या होता है, रिड्यूस होता चला जाता है। ठीक है, अगर अगर तुम्हारा फ्रैक्शन लेस देन 1 है, तुम सेम नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड करते हुए चले जाओगे, तो वो नंबर आपका इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, कितने लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आया? अगर ये वाला पार्ट समझ में आया, तो अब हम जरा सा रेशियो ऐप का एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, इसका एप्लीकेशन तुमको डीआई के प्रॉब्लम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, अब जरा इसको गौर से देखो। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म कर दो सब लोग, एवरीबॉडी। कैन यू ऑल क्विकली कंफर्म इन द चैट दिस इज क्लियर? एनीबॉडी कैन मेंशन अ नो। ठीक है, आई कैन डू दिस ऑल ओवर अगेन। ओके, बट आई डेफिनेटली नीड अ यस फ्रॉम एवरीबॉडी। ठीक है, आई डेफिनेटली नीड अ यस फ्रॉम वन एंड एवरी पर्सन हियर। ओके, अब देखो। ठीक है, चलो तुमको थोड़ा एप्लीकेशन दिखाया जाए। देखो देखो, एप्लीकेशन देखो। Let's say I have a 19 upon 32, I have a 18 upon 36, I have a 7 by 20, I have 69 upon 82, I have 37 upon 50, I have 45 upon 85. Okay, A, A, B, C, D, E, F. Arrange ascending. सब लोग ट्राई करो, टेक 30 to 40 seconds. लेट्स डू दिस। इनको अरेंज असेंडिंग करना है, सब लोग ट्राई करेंगे।
ऑलराइट, क्या बात है। अपने पास कुछ बढ़िया वाले आंसर्स भी आ गए हैं, जरा क्विकली देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। ओके, ऑलराइट, तो मेरे पास यहाँ पे देखो, आई हैव अ फ्यू नंबर्स। आई हैव 18/36 विच इज अ हाफ। ठीक है। बाकी अगर हम कंपेयर करें 19/32, 7/20, 69/82। ठीक है। इफ आई कंपेयर ए, सी एंड डी, यू कैन सी के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 13 का डिफरेंस है। मतलब कि इस नंबर में अगर 12 ऐड कर दें और इसमें भी 12 ऐड कर दें, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये कितने लोगों को समझ में आया, कंफर्म करो। तो 7/20, और अपने को असेंडिंग करना, तो छोटा नंबर पहले लेना है। ठीक है। अगर हम इस नंबर को, इसमें 12 ऐड कर दें और इसमें भी 12 ऐड कर दें, तो 19/32 आ जाएगा। सेम नंबर अगर ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज की डिक्रीज। नंबर लेस देन 1 है, तो सेम नंबर अगर ऐड कर रहे हैं तो इंक्रीज होना चाहिए। करेक्ट। तो 7/20 से डेफिनेटली बड़ा होगा 19/32। ठीक है। जिससे डेफिनेटली बड़ा होगा 69/82, बिकॉज यहाँ पे तुम 50 ऐड कर रहे हो और यहाँ भी तुम 50 ऐड कर रहे हो, सेम नंबर ऐड कर रहे हो। तो 69/82 इससे बड़ा नंबर हो जाएगा। ओके। ऑलराइट, तो ये तीन तो हमने बहुत इजीली एस्टेब्लिश कर लिया। अब देखो 37/50 भी सिमिलर ही है। क्यों? क्योंकि अगर हम 19 में 18 ऐड करें और 32 में 18 ऐड करें तो ये आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका 69/82 के पहले ही 37/50 आएगा और फिर 69/82 आएगा। इस तरीके से देखो, तुम कोई नंबर यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड करते जा रहे हो और ये फ्रैक्शन इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो ये बेसिकली है क्या, यहाँ पे सी है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे अपने पास में 19/32 जो कि ए है, उसके बाद 37/50 जो कि ई है, और 69/82 जो कि डी है। अब मेरे पास बचा है बी और एफ। ठीक है। अब बी और एफ को ध्यान से देखो, हैव अ लुक एट बी एंड एफ। ओके। अभी अगर हम गौर से देखें तो ये जो नंबर है ये बेसिकली 0.5 है। करेक्ट। और ये वाले नंबर को अगर गौर से देखेंगे तो 9/17 आ जाएगा। अब अपने को पता है कि 1/17 कितना होता है। चाहे जो भी होता हो, ये नंबर ग्रेटर देन 0.5 है, ये तो दिखाई दे ही रहा होगा। 9/18 होता है 1/2, विच इज 0.5। अब 9/17 है, डिनोमिनेटर थोड़ा कम हो जाएगा, तो नंबर 0.5 से ज्यादा होगा। तो इसीलिए अपने को डेफिनेट मालूम है कि जो बी है वो एफ से छोटा है। अब इन नंबर्स के हिसाब से हम कहाँ प्लेस करते हैं इनको। देखो, 7/20 इज डेफिनेटली लेस देन 0.5। ठीक है। तो 7/20 आ जाएगा। बाकी 19/32, 19/32 0.5 से ज्यादा है, बिकॉज 16/32 0.5 होता है, तो 19/32 डेफिनेटली ज्यादा है। तो ये तीनों नंबर्स आपके 0.5 से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि 7/20 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद सीधा आपका 18/36 आएगा। अब मेरे को बस ये डिसाइड करना है कि मैं इसको कहाँ प्लेस करूं, 9/17 को और 19/32 को। हाउ डू आई प्लेस दीज नंबर्स। अगर खाली इतना क्रैक कर लिया तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि बेसिकली इस वाले नंबर के कंपैरिजन में ये वाला नंबर कहाँ पे स्टैंड करता है। ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म कर दो। यहां तक सब लोगों को समझ में आया? ठीक है। अब देखो गौर से, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे अपने पास 9/17 है, इसको हम 18/34 लिख सकते हैं, है ना। 18/34 लिख सकते हैं। ठीक है। करण, गो अहेड विथ योर डाउट। 19 से देखो 1 का रिडक्शन है और 32 से इंक्रीज है। मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर रिड्यूस हो रहा है और डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, मतलब नंबर रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब 19/32 इस नंबर से बड़ा नंबर है। इसीलिए 7/20, 18/36, फिर 45/85, फिर 19/32, फिर 37/50 और फिर 69/82। अब इस प्रॉब्लम को सुलझा लिया गया है दोस्तों। जैसे सी, उसके बाद वी हैव बी, उसके बाद वी हैव एफ, उसके बाद में वी हैव ए, उसके बाद में वी हैव ई, उसके बाद में वी हैव टी। कितने लोगों को समझ में आया, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो। और इस तरीके से तुम कोई भी रेशियो या फ्रैक्शन कंपैरिजन करते हो। ठीक है। फ्रैक्शन कंपैरिजन क्लियर हुआ? ठीक है। फ्रैक्शन कंपैरिजन तुमको कई बार करना पड़ेगा। ठीक है। डीआई में बहुत सारे लोग जो फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वर्सेस जो फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं,
उनके डीआई के प्रॉब्लम्स फास्टर सॉल्व होते हैं। ठीक है, बिकॉज कई बार तुमसे बस ये पूछता है कि कौन सा सबसे वो कहाँ पे सबसे मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मान लो 5 तुमको डेटा पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि कहाँ पे मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा है। उस केस में तुम्हें बस रेशियो कंपैरिजन ही करना होता है। ठीक है, गो ऑन, क्वेश्चंस प्लीज, एनीबॉडी। यस, ठीक है, फटाफट कंफर्म करो। देखो, फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक है, फिर से इस वाले प्रॉब्लम को समझाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर कोई भी डाउट है तो फिर से पूछ लेना। देखो, वापस से समझाता हूँ कि किया क्या है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। फ्रैक्शन कंपैरिजन या रेशियो कंपैरिजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, स्पेशली फ्रॉम अ डेटा इंटरप्रिटेशन स्टैंड पॉइंट। ठीक है, तो ये स्किल तो अपने को डेवलप करना ही पड़ेगा। अब जरा देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन अपने पास है उसके बेसिस पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैंने ये देखा कि यहाँ पे एक 7/20 है, जिसमें यहाँ पे 12 ऐड करने से और यहाँ पे 12 ऐड करने से हम 19/32 पे पहुंच जाते हैं। तो अपने को डेफिनेट पता चल गया कि 7/20 इज डेफिनेटली लेस देन 19/32। करण क्लियर है? मृगना क्लियर है? बाकी सब लोग फटाफट कंफर्म करो चैट के अंदर। 7/20 डेफिनेट 19/32 से कम है। ठीक है, 19/32 में देखो, अगर यहाँ पे 18 ऐड कर दोगे और यहाँ भी 18 ऐड कर दोगे तो तुम इधर पहुंच जाओगे 37/50। तो 19/32 डेफिनेट 37/50 से कम है। सेम नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड करोगे, अगर नंबर तुम्हारा लेस देन 1 है तो इंक्रीज होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ठीक है, ओके, है ना? एमी सिंह, एग्जाम में श्योरली ऐसे हो जाएगा? श्योरली जरूरी नहीं है एमी, बट ऐसा हो सकता है कि दो नंबर्स में दिख जाए। ठीक है, अगर पता नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ वर्ड कॉल्ड निनकम्पू। कितने लोगों ने ये वर्ड देखा है? अब बता दिया, अब दिखेगा। नहीं पता है तो नहीं दिखता है। ठीक है, अगर तुम्हें कोई वर्ड पता ही नहीं है तो वो दिखता ही नहीं है। अब बता दिया ना, अब दिखना शुरू होगा। ठीक है, सो बेसिकली दैट इज, ब्रेन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिवाइस। जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो वो तुम कभी स्पॉट नहीं करोगे। ये वाला एलिमेंट, कंपैरिजन वाला भी, तुम स्पॉट नहीं करोगे अगर तुमको नहीं पता है तो। ठीक है, बट कैट में कई बार हो चुका है पहले ये यूटिलाइज क्वेश्चंस के अंदर। आई विल शो यू दैट। ठीक है, अब देखो, 7/20, 19/32, 37/50। फिर से देखो, यहाँ पे अपने पास में 37/50 तो ठीक है। उसके बाद देखो 32 ऐड किया, 32 ऐड किया, तो फिर से इंक्रीज हो गया 67/82। यहां तक सब लोगों को क्लियर है? एक बार फटाफट कंफर्म करो। अब देखो, सब कुछ तुम्हारे पैटर्न पे ही फिट हो जाए जरूरी नहीं है ना। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? सब कुछ तुम्हारे पैटर्न पे फिट हो जाए जरूरी नहीं है, एंड देयरफॉर यू नीड सम लेवल ऑफ कैलकुलेशन एंड सम लेवल ऑफ अप्रोक्सीमेशन ऑल्सो। अब मेरे पास क्या बच रहा है? ठीक है, करणदीप, इज दिस क्लियर? बाकी सब लोग भी फटाफट कंफर्म करो। अब मेरे पास क्या बच रहा है? मेरे पास बी बच रहा है और मेरे पास एफ बच रहा है। ठीक है, बी 18/36 है तो सीधा सीधा 0.5 होगा, है ना? दिवांश बोल रहा है 69, हाँ 69। ठीक है, तो ये तुम्हारा 0.5 सीधा सीधा होगा, और ये 45/85 है। 45/90 इज 0.5। 45/anything less than 90 is greater than 0.5. Do you guys agree with me or not? So this number is definitely greater than 0.5. ठीक है, तो अब बी और एफ में तो मुझे एक रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग मिल गया कि कौन सा नंबर ज्यादा है, लेकिन अब मुझे ये नंबर्स को इधर भी प्लेस करना है। अब यहां पे देखो, 19/32 जो है वो आपका ग्रेटर देन 0.5 होगा। क्यों? क्योंकि 16/32 ही 0.5 होता है, तो 19/32 तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0.5 होगा ही ना। ठीक है, न्यूमरेटर ज्यादा है तो नंबर आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो 19/32 डेफिनेटली इससे ज्यादा है। तो और 7/20 क्या है? 7/20 इज 0.35, तो 7/20 से तो ये नंबर बड़ा है। तो 7/20 से आप इस नंबर को यहाँ पे 18/36 को ले लो, और 19/32 यहाँ ले लो, 37/50 ले लो, और 67/82 ले लो। अब मुझे एक नंबर एडजस्ट करना है जो कि है 45/85। अब मुझे ये देखना है कि ये कहाँ पे आएगा। इसके राइट में आएगा फॉर श्योर। 18/36 0.5 होता है तो उसके राइट में आएगा, उससे बड़ा नंबर है। अब चलो इससे कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास है 19/32,
ये वाला जो नंबर है 5 से 9 टाइम्स में 17 टाइम्स, 9 है 17 है, तो मुझे इस नंबर को इन नंबर्स के आसपास ले जाना है ताकि मैं कंपैरिजन अच्छे से कर पाऊं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नंबर बन गया 18 और ये बन गया 34। अब गौर से देखो, न्यूमरेटर 1 से रेड्यूस हो जा रहा है और डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जा रहा है। न्यूमरेटर घटेगा और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो नंबर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इसी बात है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है 45/85 ये 19/32 से कम होगा। तो बस फिट कर दो इसको, तो काम खत्म। 7/20, 18/36, 45/85, 19/32, 37/50, 67/82। समझ में आया कि रेशियो कंपैरिजन करते कैसे हैं? गिव मी यस और नो इन द चैट। देख, बेसिक बेसिक नंबर स्किल है रेशियो कंपैरिजन। ठीक है, रेशियो कंपैरिजन के अंदर अगर तुम डीआई में अच्छा करना चाहते हो, अगर तुम डीआई में टाइम बचाना चाहते हो, तो रेशियो कंपैरिजन तुमको आना ही चाहिए। नहीं तो डीआई में जो क्वेश्चन बाकी लोग 8 मिनट 10 मिनट 12 मिनट में कर रहे हैं, वही क्वेश्चन तुम्हारा 15 18 मिनट ले जाएगा। और एक डीआई का सेट तो लिखा हुआ है कि आएगा ही, उसको कोई नहीं बदल सकता है। एक डीआई का सेट तो आना ही है। तो अगर वहां पे तुम कैलकुलेशन थोड़ा इंप्रूव करके टाइम बचा लो, तो तेरे पास एक और सेट करने का चांस है। अगर तुम वो एक डीआई सेट के अंदर ही 15 18 मिनट लगा देगा और 2 3 मिनट तुमने स्कैनिंग में लगा दिया तो 20 22 मिनट। द मोमेंट डीआईएलआर के अंदर टाइमर 20 के ऊपर जाता है और तुमको टिकटिकी में 19 समथिंग समथिंग दिखना शुरू हो जाता है, 16 समथिंग समथिंग दिखना शुरू हो जाता है, उसके बाद तो इंसान अलग लेवल पैनिक मोड में आ जाता है। उसके बाद ग्रेट, मतलब अगर तुमने दूसरा सेट 20 मिनट के पहले शुरू कर दिया है तो बहुत हैवी चांसेस है कि तुम 99 मारोगे, अगर तुमने दूसरा निकाल दिया तो। ठीक है, अगर तुमने दूसरा सेट 20 मिनट के बाद शुरू किया है तो हो सकता है कि वो प्रेशर गेट्स द बेस्ट ऑफ यू। ठीक है, वो प्रेशर के अंदर कई बार चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, गोपाल सिंह की एग्जाम में टाइम फास्ट क्यों निकल जाता है? इसके लिए आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दिया है कॉल्ड थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, पढ़ के आना। ठीक है ना? थियरी ऑफ रिलेटिविटी, खुशी का वक्त जो होता है वो जल्दी बीत जाता है। ठीक है, ऐसा आइंस्टाइन चचा ने कहा है। ठीक है, ऐसे बोल दिया मैंने, रैंडम शिट। सबको समझ में आया रेशियो कंपैरिजन, हाँ कि ना? फटाफट सब लोग कंफर्म करो चैट के अंदर। ठीक है, ठीक है ना? तो रेशियो कंपैरिजन के अंदर हमने थोड़ी सी बात करी है। ठीक है, प्रैक्टिस से तो डेफिनेटली ठीक होगा, आई डू नॉट डाउट दैट। ठीक है, ओके। नाउ जब अपन बैठेंगे कल वाली सभा में, ठीक है, तो कल वाली सभा के अंदर हम थोड़ी सी बात करेंगे एवरेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एवरेजेस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक्निक है कॉल्ड एएमएम, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन वील टॉक अ लिटिल बिट अबाउट स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड बेसिक नंबर्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर वी आर इफेक्टिवली थोड़ा सा रेडी टू टेक ऑन अरिथमेटिक। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू इज, फॉर एग्जांपल कुछ बेसिक आपके जो परसेंटेजेस हैं, जो फ्रैक्शंस हैं, मल्टीप्लायर्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर वी विल शेयर एन एक्सरसाइज विथ ऑल ऑफ यू इनसाइड द ग्रुप। ठीक है ना? तो 120 डेज जनता, ओमिट्स जनता, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, विल शेयर एन एक्सरसाइज विथ ऑल ऑफ यू। सब लोग उसको सॉल्व करना और फिर मिलेंगे अगली सभा में। ठीक है, आई एम सेइंग 20, ओके, 20 मिनट पर सेकेंड सेट चल रहा हो तो इज इट गुड? सही कहूंगा मैं। ठीक है, मतलब इट्स नॉट बैड, इट्स एब्सोल्युटली क्वाइट गुड। रक्षित इज सेइंग शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच रक्षित मेरे भाई। अम, है ना? अंकित सिंह, एक्चुअली मैं बाहर कितना भी पढ़ लो, मॉक्स में जाके 2+2 भी वेरीफाई करने लगता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, आई डो नॉट वॉन्ट टू लोड यू, बट आई रियली वॉन्ट टू टेल यू कि भाई ये बेसिक चीजें हैं बट इनको इग्नोर मत करना। इफ यू रियली वांट अ गुड आउटकम फॉर योर सेल्फ, इफ यू नीड अ डिसेंट स्पीड, ठीक है, बेसिक है लेकिन इग्नोरेबल नहीं है। ठीक है, इसको इग्नोर करेगा तो फिर देखो प्रॉब्लम होगा ही होगा। ठीक है, जो चीज फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 1.5 मिनट का है, उसको अगर तुम 4 मिनट तक ड्रैग करोगे तो ऑब्वियसली तेरे पास टाइम नहीं होगा। ठीक है, इसका जो होमवर्क है वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। ठीक है, ठीक है जी, फिर मिलते हैं अगली वाली सभा में।
Okay, people who've not yet started for 120 days can get started. I'm sharing, the helpline contact. You can connect and get started for 120 days of preparation. Okay. For people who've, started, we'll share the assignment with all of you, which you will be completing before the session tomorrow. And फिर कल वाले सेशन के अंदर बैठेंगे और कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वाली चीजें कवर करेंगे। ठीक है जी। मिलते हैं दोस्तों अगली सभा में। ज्यादा लोड नहीं करना चाहता हूं मैं। आई वुड रियली वांट यू ऑल टू स्टार्ट स्टेडीली, बट स्टार्ट पुटिंग इन एफर्ट्स। Thank you so much, everybody, for joining in. Wish you all a great night, and let's welcome a happy Sunday. Bye bye.